So we'll be starting as usual our session now with a short kirat, and then I would request Asma ma'am to host this entire session. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. Thank you everyone for joining AMP online career guidance seminar. As we all know that today's session is about road less traveled. So I would request now Ms. Asma Firdos, who's head of AMP's school development program, to host this session from here on. Thank you so much. Assalamu alaikum all. I'm Mrs. Asma Firdos, welcoming you all to today's session on career in the road less traveled. Before commencing the session, I would like to introduce all of you to AMPs, what is its mission, vision, and also its achievements. So about AMP, AMP is registered in India, USA, UK, and Australia as a non-profit organization. And the letters AMP, it stands for Association of Muslim Professionals. AMP has completed its 12 years serving our community in the field of education, employment, and empowerment. AMP has a vision to positively impact the lives of 10 million people by the year 2030. AMP's mission is to empower the underprivileged for the greater benefit of the society in general and nation as a whole. What is AMP's mission? AMP's vision is to be a model community which is advanced in education, socially progressive, culturally vibrant, politically influential, and also economically dynamic. Coming to the achievements of AMP, AMP has regularly conducted the skill development lectures under the school development programs. It has connected to 800 plus schools and conducted around 2,750 skill development lectures. Due to this skill development lectures, around 2,75,000 students have been benefited. Under the school development program, AMP has conducted 100 plus teachers training and parenting workshops also. Employment Assistance Cell, that is the EAC set up by the AMP, has conducted around 350 plus job fairs and job drives, benefiting around 20,000 students, candidates to get employed. It has also conducted around 200 plus employability trainings, out of which 15,000 students, degree students, have been benefited. In accordance with providing higher education to the students, AMP has provided around 800 plus scholarships for funding the higher education of students, and also to provide basic education to the orphans. AMP has provided around 750 students who are orphans to continue the basic education. They have also have schemes for self-employment, from which 250 plus families have been transformed by AMP's self-employment assistance. The AMP Resource Center contains around 600 plus career counselors who have regularly counseled around 2,000 plus students and also have distributed around 1,000 plus career guidance charts. AMP has partnered with 30 plus and 50 plus NGOs for various programs and also for skill training and job fairs. It has awarded around 280 plus renowned educationists
for their good work and achievements. Coming to the online presence of AMP, currently AMP has more than 100 plus active chapters, which are spread across 25 states with 16 countries and 6,000 plus active members. It has online presence with around 1,25,000 members and professionals connected on the social media. I, on behalf of, to join AMP, I would request to visit our website www.ampindia.org/joinamp. Over to Shehzad. Thank you so much, Asma ma'am. So it is a pleasure to have you all on board. I would now like our speaker, Mr. Momin Fayyaz Ahmed, to take it from here. He is a career counselor and also assistant teacher in a junior college, Samothia Junior College. I request him to kindly conduct this session. Also, to all the attendees, if you have any questions, you can raise your questions in Q&A section. Thank you. Yeah, start. हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन, आवाज है सबको मेरी? डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने जो स्लाइड है, नियर अबाउट 17 लाख स्टूडेंट ने दिसंबर और जनवरी के महीने में ये टेस्ट दिया था कल चाशनी के नाम से। कल चाशनी, अनदर नेम इज अभिक्षमता कल चाशनी। दिस टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 10। इस टेस्ट को गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज किया है। ध्यान रहे, इस टेस्ट की फीस नियर अबाउट 1500 होती है, लेकिन गवर्नमेंट ने लास्ट 3 ईयर से इसको बिल्कुल फ्री कर दिया है। आपके सामने जो चार्ट नज़र आ रहा है, जितने स्टूडेंट ने कल चाशनी टेस्ट दिया है पूरे महाराष्ट्र पे, सबको टेस्ट कंपलसरी था पे। अब आपके सामने देख, इसके अंदर 7 फील्ड है। जो पहली फील्ड है, आप देखेंगे डायग्राम, जो बच्चे अभी स्टूडेंट्स अभी 10 के एग्जाम दिए हैं, उनके पास रिजल्ट आ चुका है। अगर किसी बच्चे के पास ये रिजल्ट नहीं है तो उसकी जो वेबसाइट है www.महाकरियर इस वेबसाइट पे जाके अपना रिजल्ट जो है अपलोड आप लोग कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद आपको ये देखना होगा कि सबसे ज़्यादा आपको किस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है। यहाँ पे आपके सामने जो डायग्राम बने, जो पहला जो है वो आपकी इंटरेस्ट फील्ड है, और जो बाजू में जो 4 डायग्राम बनी है वो आपका एप्टीट्यूड है। आप देख रहे हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा, अगर पहले जो फर्स्ट फील्ड है वो एग्रीकल्चर की है। दूसरी फील्ड जो है वो उसका रिलेशन जो है आर्ट्स से, उसके बाद फाइन आर्ट्स है, कॉमर्स है, हेल्थ साइंस है और टेक्निकल, इसके बाद यूनिफॉर्म सर्विसेज है पे। ये 10 के बाद जो 7 फील्ड है। सपोज आपका इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा हेल्थ साइंस में आया है। हेल्थ साइंस में इसमें अगर आपको करियर चॉइस करना है तो इसमें आपको सब्जेक्ट ग्रुप सिलेक्शन करना होगा। अब सब्जेक्ट में सपोज आपको मेडिकल में जाने का है तो मेडिकल के लिए आपको CBZ है और इंजीनियरिंग के लिए CPM है। अगर कुछ बच्चे ऐसे तो बहुत टैलेंटेड होते हैं जो CPM भी लेते हैं, यानी फिजिक्स, मैथ्स और बायोलॉजी दोनों लेते हैं। तो पहला आपका जो भी इंटरेस्ट जिसमें भी आया है, अगर मान लो आपका इंटरेस्ट यूनिफॉर्म सर्विस में आया है, यूनिफॉर्म सर्विस में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ND है, UPSC प्लस होता है। NDA के मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। ये जिस बच्चे ने 12 साइंस लिया है, NDA का इंट्रेंस एग्जाम होता है। एग्जाम क्वालिफाई करने का मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट के बाद जब उसका एडमिशन होगा तो उसकी टोटल पढ़ाई जो है फ्री हो जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से। पे उसको कुछ भी खर्चा नहीं देना पड़ेगा। टोटल खर्चा जो है NDA डिफेंस सेक्रेटरी को उसको बर्दाश्त करेगा। पे अगर आपका इंटरेस्ट एग्रीकल्चर में, पहले ही एग्रीकल्चर सामने 2 साल पहले इसको इंक्लूड नहीं किए थे, लेकिन इस मतलब इसको भी इंक्लूड किया गया है। तो जिसका अभी और ये जैसे हमारा कंट्री है वो जो है एग्रीकल्चर कंट्री है, तो 70% जो है इसी ऊपर डिमांड है और आजकल इसकी बहुत डिमांड है।
डिमांड बढ़ने लगी आज के यहाँ पे। अब जैसे आपका इंटरेस्ट मान लीजिए कि कॉमर्स में पूरा जो है न्यूमेरिकल ज़्यादा रहता है, तो अपना एप्टीट्यूड देखिए कि आपका एप्टीट्यूड कितना जा रहा है। जो दूसरा डायग्राम है जिसमें आपको 4 डायग्राम दिख रहा है, उसमें आपको तय करना है कि आपका एप्टीट्यूड वहाँ पे है कि नहीं। यहाँ पे यानी मेडिकल का, इंजीनियरिंग का, टेक्निकल कोर्सेस है, आर्ट्स है, फाइन आर्ट्स है, ये पूरा रिलेशन इससे यहाँ पे हो। ये जो साइट वेरी इंपॉर्टेंट है कि जैसे आपका इंटरेस्ट एग्रीकल्चर में आया है, तो आप इस वेबसाइट पर जाएंगे, एग्रीकल्चर के कौन कौन से कॉलेजेस है पूरे महाराष्ट्र में, या और जैसे आप लिखेंगे अगर आपका स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से कॉलेज है, तो पूरी डिटेल आपको आएगी। कॉलेज का लास्ट का कट ऑफ क्या है, वो जो भी आपकी फील्ड में इंटरेस्ट है, अगर आपका एग्रीकल्चर आया है, आर्ट्स आया है, फाइन आर्ट्स आया है, मेडिकल आया है, हेल्थ साइंस आया है, तो हेल्थ साइंस में आपको जाना पड़ेगा क्या हेल्थ साइंस में कौन कौन से ग्रुप है, सीपीपी ग्रुप में क्या है, सीपीएम में क्या है, कौन से कॉलेज कहाँ पे है, कितनी फैसिलिटी है, ये आप क्लिक करते जाएंगे, आप एक बाय वन सब मिलते जाएगा। फिर इस कॉलेज का कट ऑफ क्या है, कौन से कॉलेज टॉप क्या है, कॉलेज की फीस क्या है, ये पूरी की पूरी नॉलेज आपको www.महाकरियर ये नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट बट आल्सो पेरेंट्स हैं, उनके लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वेबसाइट। तो आई वांट एवरी पेरेंट्स, every student must visit www.mahacareermitra.in। इसमें आपको पूरा यानी इवन 9 से लेके 12 तक आप क्या करने वाले हैं उसकी पूरी डिटेल है। अभी सपोज आपको स्कॉलरशिप चाहिए, तो उस पर एक ऑप्शन है स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप कौन कौन सी है, नेशनल पोर्टल में क्या क्या आता है, मौलाना आजाद स्कॉलरशिप है, नेशनल पोर्टल स्कॉलरशिप है, जितनी भी स्कॉलरशिप पूरे इसके अंदर आपको मिल जाएगी। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। कोई कॉलेज है पूरे हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ कॉलेज है, खाली आपको नाम टाइप करने हैं कि इंस्टीट्यूट नेम, स्टेट नेम या डिस्ट्रिक्ट नेम या सिटी नेम, तो पूरे की पूरे इस वेबसाइट पे आपको अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, ओके। तो दिस इज अबाउट योर कल चार्टनी टेस्ट। जिस फील्ड में आपका है आप उसका एप्टीट्यूड देखिए, और आपकी दिलचस्पी स्पेशल 10 स्टूडेंट के लिए आप मस्ट अपना रिजल्ट कल चार्ट सामने रख के उसको चेक कीजिए कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। ये आपको बेटर करियर के लिए बहुत यूजफुल है। इस ताल्लुक से अगर किसी को डाउट है तो क्वेश्चन पूछ सकता है। पे सर अभी क्वेश्चन करेंगे कि बाद में करेंगे। हेलो, Q&A सेशन हम लोग जो है फैयाज सर एंड में ओके ठीक रखेंगे है 20 स्लाइड शुरू कर मिनट्स। दीजिए। स्लाइड शुरू कीजिए। फर्स्ट स्लाइड है, रेडी है, स्लाइड 1। हाँ देखिए, इसमें मुझको जो स्पेशल जो है पैरामेडिकल पे बोलने का है। आफ्टर पासिंग 12 साइंस योर परसेंटाइल डिवाइड इनटू 3 कैटेगरीज। अभी मैं जिक्र किया था कि अगर आपको मेडिकल में जाना है, तो मेडिकल के लिए जो यहाँ पे ग्रुप बना है, एक पीसीबी है, दैट मीन्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है, सेकंड वर्ड फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। थर्ड में एग्री यानी पीसीएमबी। जिस स्टूडेंट का इंटरेस्ट मेडिकल में आया है, अब मेडिकल की बहुत सारी फील्ड है, देखते हैं मेडिकल की फील्ड कौन कौन सी है। नेक्स्ट स्लाइड सजाद भाई, नेक्स्ट स्लाइड। ये जो टॉप के कोर्सेस है, ये सब आपको मालूम है। एमबीबीएस नीट का एग्जाम है, बीडीएस है, बीएमएस है, बीएमएस है, बीएचएमएस है। ये कोर्स के बारे में हर कोई जानता है पे कि इसके लिए नीट एग्जाम है, पीएमपीडी है, एम्स एग्जाम है, क्वालिफाई करना कंपलसरी है। ये जो है बहुत टॉप के कोर्सेज यहाँ पे, इसके बारे में सबको नॉलेज है। इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि ये सब यू नो वेरी वेल। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ देखिए, अब यहाँ पे मेडिकल के साथ साथ जो कोर्सेज चलते हैं, ये सब उनका साथ देते हैं। नर्सिंग के लिए जो बीएससी नर्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजियोथेरापी, ऑक्यूपेशनल थेरापी, लैंग्वेज एंड स्पीच थेरापी, ऑस्थेटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स, वेटरनरी साइंस। नर्सिंग के लिए भी आप लोग बहुत अच्छे जानते हैं यहाँ पे कि क्या क्या क्वालिफिकेशन है। यहाँ पे 12 है आपके पास, तो आप नर्सिंग में एडमिशन लेते हैं। कहीं पे इसका एडमिशन डायरेक्ट मिलता है और कहीं पे सेट के लिए जरूर यहाँ पे। दूसरे नंबर पे आपके देख सामने क्या लिखा है, फिजियोथेरापी।
आजकल इसकी भी बहुत डिमांड है। अभी कुछ बरस पहले इन भिवंडी डॉक्टर कमाल अंसारी करके है, उनके पास इतने पेशेंट थे कि इनको जगह नहीं आती। इसमें क्या करते हैं, किसी को फालिज मार दिया है, लकवा मार दिया है, तो उसको मुख्तलिफ वे के जरिए इसको वजन के जरिए वर्जिश कराई जाती है और उनको वजन में कभी कभी जो हल्का सी शौक दिए जाते हैं फिजियोथेरेपी के लिए पे। तो ये कोर्सेज की मांग बढ़ती जा रही है और अभी भी इसकी बहुत नीड है पे फिजियोथेरेपी की। इसी तरह से ये भी मेडिकल के साथ साथ और इसमें एक्यूपेशनल थेरेपी। इसके बाद देखते हैं लैंग्वेज ऑस्टेटिक है, वेटरनरी साइंस, इसको बहुत लोग पढ़े थे, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ये जो जितने भी जनरल डॉक्टर है, यानी अगर एज ए प्रोफेशनल वो बहुत ज़्यादा उनकी इनकम होती है यहाँ पे। बस ये कहते हैं कहलाते हैं वेटरनरी साइंस कहलाते हैं। नेक्स्ट शायद भाई, ये सब पैरामेडिकल है। डीएमएलटी, डीएमएलटी के और सीएमएलटी आप लोग देखते हैं कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको खून है, पेशाब है, थूक है और दीगर चीज़ जो है चेकिंग के लिए आते हैं। ये जो लोग चेकिंग करते हैं, एक डीएमएलटी एक सीएमएलटी पे। डीएमएलटी बीएससी डीएमएलटी 1 साल का है। आप 10वीं के बाद जो ओपन यूनिवर्सिटी स्पेशल जसचंद्र चौहान, इसमें कोर्स है 10वीं के बाद। ये कोर्स करने के बाद आप जो है खून पेशाब के चेक कर सकते हैं, लेकिन आप अपना लैब नहीं डाल सकते यहाँ पे। आप कहीं पे सर्विस कर सकते हैं, आपको सर्विस करेंगे तो आपको जो भी 8-10 हज़ार रुपये मिलेगा पे। लेकिन अगर आप बीएससी डीएमएलटी कर लेते हैं आप, तो ये आप अपना खुद का लैब डाल सकते हैं और खुद को आपको साइनिंग अथॉरिटी मिलेगा पे। और आप लोग देखते हैं कि आजकल इसके बगैर कोई काम होता ही नहीं अभी। और सब पर बहुत सारी टेस्टिंग, आज जो कोरोना का दौर है, सब जब तक टेस्टिंग होती नहीं है आगे काम बढ़ता नहीं है। तो ये पैरामेडिकल का बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, डीएमएलटी और सीएमएलटी। सीएमएलटी आप करेंगे तो आप लैब नहीं डाल सकते, लेकिन अगर आप लोग डीएमएलटी करते हैं, बीएससी डीएमएलटी करते हैं, हर शहर में सिटी में इसके कॉलेज रहते हैं पे। उसके बाद फार्मेसी, 12 के बाद अगर आपको डायरेक्ट फार्मेसी के अंदर डायरेक्ट डी फार्म डिप्लोमा इन फार्मेसी एडमिशन मिलेगा। अगर आप बी फार्म करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सेट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और लास्ट मैं समझता हूँ 2 to 3 ईयर्स का बहुत डिमांड बढ़ गया पे। जितने भी मेडिकल है विदाउट फार्मेसी के अधूरी है और उनको पूरा सर्विस करना पड़ता है। और आराम से 30 से 35 हज़ार रुपया जो डिप्लोमा कर लेते हैं फार्मेसी में, आराम से कमा सकते हैं आप लोग। इसी के साथ जो आप देख नीचे एक्सरे है, ये कम बजट में आपका, अगर आप डॉक्टरी मतलब कि आप डॉक्टरी कराएंगे करने के बाद, एमएलटी है, डिप्लोमा इन फार्मेसी है, एक्सरे, विदाउट एक्सरे कुछ काम होता ही नहीं है। ईजीसी टेक्नीशियन है, चाइल्ड डेवलपमेंट है। यहाँ पे मैं आपको डेंटल मैकेनिक के बारे में बोलूँगा कि शहर बॉम्बे में सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल में डेंटल मैकेनिक और डेंटल हाइजीन 10 सीट डेंटल मैकेनिक की है और 10 सीट डेंटल हाइजीन की बॉम्बे में। इसके अलावा अभी मैं और कॉलेज डिटेल दूंगा कौन कौन से कॉलेज है। अभी आप सब कौन खाली आप देखते जाइए यहाँ पे कि कौन कौन से कॉलेज में कहाँ पर है। डेंटल मैकेनिक जो दांत बनाते हैं, डुप्लीकेट दांत जिसको बोलते हैं पे। एक मतलब मैं लास्ट ईयर अकोला गया था, बॉम्बे से एक ने डेंटल मैकेनिक कोर्स किया था। उसकी लैब में कुछ 25 लोग काम करते थे, कल नाम तो साहब का, 25 लोग काम करते थे। और वो हर एक जो उसका न्यू एम्प्लॉय होता था उसको मिनिमम 10,000 देता था, और जो सीनियर थे वो 25,000 उसको सैलरी मिलती थी। तो आप सोचिए उसका काम कितना बड़ा होगा। शुरू में उसको बहुत मेहनत करनी पड़ी, वो पहले साइकिल से फिर बाइक से उधर दौड़ता था। आज के बाद बेहतरीन लैब है और उस लैब में वो दांत बनाता है, उसके अंदर जो काम करने 25 लोग आपको। यानी इसमें जितना आप मेहनत करेंगे उतना आगे बढ़ते जाएंगे। और क्योंकि मैं खुद उसको लैब में जाकर देखा था, मेरा अच्छा एक्सपीरियंस लगा, मुझको कोर्स बहुत अच्छा लगा डेंटल मैकेनिक का। 12वीं के बाद 2 साल का कोर्स है और 6 महीने की इंटर्नशिप है। उसके बाद आप खुद जो अपना लैब डाल सकते हैं और जितना आप दौड़ सकते हैं, जितने भी आपके जो बीडीएस डॉक्टर हैं उससे कांटेक्ट करेंगे, जितना भाग दौड़ करेंगे उतने ज़्यादा आपके पास आपको शोहरत भी मिलेगी, इज्जत मिलेगी और पैसा भी मिलेगा। इस तरह से रेडियोलॉजिस्ट है, इसकी बहुत डिमांड है। ऑप्टोमेट्री है,
ऑप्टोमेट्री भी मेरे कई जो सजेशन दे दो किए ऑप्टोमेट्री, लोग क्या करते हैं, डॉक्टर चेक करते हैं, डॉक्टर ऑपरेशन करता है, लेकिन डॉक्टर चश्मा नहीं देता है। 2 साल का कोर्स ये भी ऑप्टोमेट्री का, ये कोर्स के बाद भी आप अपने फ्यूचर को बेटर कर सकते हैं। नेक्स्ट है भाई, ओके, नाउ सम प्रोफेशनल कोर्सेज। ये मैं जो रबर टेक्नोलॉजी के बारे में बताने जा रहा हूँ। रबर टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन लेदर टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन फूड टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन डायरेक्ट टेक्नोलॉजी। इसके बाद प्रोजेक्ट कोर्स है। मेरे एक टीचर है कड़ो सरकार पे, उनका मानना है जैसे आप रबर टेक्नोलॉजी करते हैं आपको फॉरेन कंपनी में जॉब मिल जाता है। यहाँ पे ये जितने भी कोर्सेज हैं यहाँ पे, जो प्रोफेशनल यहाँ पे हर एरिया में इसके कॉलेजेस हैं यहाँ पे, बॉम्बे में, पूना में, जहाँ जो बड़े बड़े सिटी में कॉलेज चलते हैं यहाँ पे। यानी ये जो रबर टेक्नोलॉजी है, एज अकॉर्डिंग टू माई टीचर, इनको फॉरन में स्टार्टिंग पे में 15,000 शुरू होती है, उसके बाद जैसे से वो आगे बढ़ेंगे पे उसमें उनको जॉब मिलती है। पे इसका नाम है रबर टेक्नोलॉजी। आज देखते हैं बहुत सारी चीज़ें रबर से तैयार हुई है, टायर है, ट्यूब है, सब किसे तैयार होते हैं पे। तो ये भी जो 12 के बच्चे हैं वो कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे जो पैकेजिंग है, हाँ, कितने अच्छे फूड जो आप देखें पैकेजिंग में आते हैं, जितनी पैकेजिंग अच्छी रहती है उतना उसका डिमांड रहता है। तो ये भी कोर्स आप लोग आफ्टर 12 अटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा पहले एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर के बाद जिसका डिमांड है वो टेक्सटाइल कोर्सेज पे। 10 के बाद भी कर सकते हैं और 12 के बाद भी कर सकते हैं। पे जो नई नई डिजाइनिंग आई थी कपड़े में, ताना बाना क्या क्या चीज़ें हैं, वो पूरा इसके अंदर सिखाया जाता है। पे अब इसके लास्ट में मैं आपको बताऊंगा ये जो डिप्लोमा इन टेक्सटाइल केमिकल प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी है, डिप्लोमा इन फैशन एंड अपरेल डिजाइनिंग टेक्नोलॉजी है, सर्टिफिकेट कोर्सेज इन वेट प्रोसेसिंग ऑफ मैन मेड टेक्सटाइल, डिप्लोमा इन फैशन डिजाइनिंग, डिप्लोमा इन टेक्सटाइल कलर एंड डिजाइन टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन एम्ब्रॉयडरी टेक्नोलॉजी एंड मर्चेंडाइजिंग। अभी स्पेशल जो हमारा शहर भिवंडी है, पावर लूम के लिए बहुत फेमस है। तो इस तरह से बॉम्बे में सासमीरा है, इसके अलावा निफ्ट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। पहले क्या होता था कि लूम पे कपड़ा चलता था। पे अभी ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आई है कि अगर आपको एक सूट बनाना है खाली आपको धागा डाल देना है पे, और अगर आपको चाहिए कि ये एक रेडीमेड कपड़ा बन के निकलेगा यहाँ पे, आप जिस कलर का जैसा सूट बनाना चाहते हैं, ऊन है, सूटर है, कोट है, ये सब पूरा ही पूरा रेडी आता है निफ्ट में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी फैशन टेक्नोलॉजी पे। ये सब कॉलेज के भी डिटेल अगली स्लाइड में आपको दूंगा। पे ध्यान रखना, करने के लिए बहुत कुछ है। आपने जो खास जो 10वीं जो बच्चे जो एप्टीट्यूड टेस्ट दिए, देखिए आपको रुझान, अगर आपने जो टेस्ट बगैर पढ़े भी दिया है, जब आपका रिजल्ट आएगा उससे मैच कीजिए, अपनी काउंसलिंग कराइए कि आप वो कोर्स कर सकते कि नहीं। एक बच्चे में वैरायटी ऑफ यानी बहुत सारी दिलचस्पी रहती है पे, तो आप देखिए कि आपके अंदर क्या क्या एबिलिटी है, और जैसे आप आगे जाएंगे बढ़ते जाएगी। अगर आपको अच्छा माहौल मिलेगा तो ये आपको बढ़ते जाएगा। अगर आपके पास अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं है तो आपको खुद मेहनत करना होगा पे, और आप आगे बढ़ सकते हैं। सर भाई नेक्स्ट, हाँ सामने यहाँ पे अभी मैं एकदम स्टार्टिंग में जिक्र कर रहा था आपको कि पहले जो आपने जो पहली स्लाइड देखी थी, किस बच्चे का इंटरेस्ट अगर एग्रीकल्चर में आया है। एग्रीकल्चर कोर्स के लिए हुकूमत जो बहुत सारे लोन देती है, और ये एग्रीकल्चर से में एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, फूड टेक्नोलॉजी है। इसके अंदर यहाँ पे देखिए जो हमारा मुल्क है 70% गांव और देहात में पे, और वो लोग काम करते हैं गांव के लोग, लेकिन उनको उसकी मालूमात नहीं होती है पे। इसके लिए गवर्नमेंट जो बहुत सारे लोन भी देती है पे,
और उसकी हेल्प करती है पे। अब इसको बाकायदा जो है फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में लिया गया है। ये करने के बाद आप कौन कौन से कोर्सेस कर सकते हैं। तो अभी इस साल से जो है इसको सिलेबस में ले लिया गया है कि आप एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, फिशरी है। मछली के भी बहुत डिमांड है अपने, इसको मतलब मछली पालन है। मछली पालन के लिए भी गवर्नमेंट बहुत सारी फैसिलिटी देती है। यहाँ पे मछली पालन का जिक्र नहीं किया वहाँ पे, लेकिन मछली पालन के लिए भी बहुत सारे लोन्स मिलते हैं। और जैसे से आपकी एजुकेशन बढ़ती जाएगी, अगर आपने बीएससी किया है तो बहुत सारे जितने भी नेशनलाइज बैंक है उसमें एज ए फील्ड ऑफिसर आपका सिलेक्शन होता है और आप अच्छी खासी तनख्वाह ले सकते हैं। और अगर आपका कोई खेत में काम कर रहे हैं और आपको ऐसे फील्ड ऑफिसर जानना है तो आपके पास रुआब भी रहेगा और पैसे भी रहेगा और इज्जत भी रहेगा पे। जितने कोर्सेज एग्रीकल्चर कॉलेज से मिट्टी की पहचान, कौन सी मिट्टी किस दरबार से है, ये जरखेज है कि नहीं है, इस वाले में उसके बताए जाते पे। अब फॉरेस्ट्री है पे, इसमें भी आप बहुत सारे काम कर सकते हैं यहाँ पे। फिर इसको अगर मार्केटिंग से जोड़ देंगे पे, मार्केटिंग भी एक बहुत बड़ा सोर्स है यहाँ पे कि किस तरह से करना है यहाँ पे वो। और यहाँ पे एक दिख रहा है बीटेक। बीटेक में तो ऐसे ऐसे चेंजेस आ गए हैं कि अगर आप एक तस्वुर करो, एक इमेज करो कि भी आपके सामने जो सेब आ रहा है उसकी पोजीशन क्या रहती है। ये जो बायोटेक्नोलॉजी है वो चाहती है कि जो जब सेब है, एप्पल है या बनाना जो रखने हो उसमें बहुत टाइम लगता है, तो उसका शेप बिल्कुल चेंज कर देना पे, यानी उसको स्क्वायर रखना है ताकि वो एक ऊपर एक आ जाए पे। या जो बीज है, कम बीज के बगैर, जैसे सीताफल है उसमें बीज बहुत होते हैं पे, तो उसको बीज को कैसे कम करे और उसका प्रोडक्शन भी बढ़े, तो ये सब जो है बायोटेक्नोलॉजी में सिखाया जाता है कि किस तरह से इसको करते हैं। और एक ही एक ही जमीन में हमको सीताफल है, सेब है, वो उगाना है, या जितने अनाज उगाना है वो उससे सब जो क्या इंक्लूड सब एग्री बायोटेक्नोलॉजी का शुमार होता है आपको। तो ये फील्ड बहुत वेराइटी है पे। बॉम्बे में इस फील्ड का बहुत डिमांड करते जा रहा है कि बीएससी बायोटेक जो कर लेता है, बायोटेक कर सकते हैं, उसको फौरन जो है कंपनियां आती है आपको। तो ये सब बेहतरीन कोर्सेज है और एग्रीकल्चर का कोर्स का डिमांड बढ़ते ही जाएगा पे। इसको पूरा गवर्नमेंट का पूरा सब। नेक्स्ट सजा भाई, नेक्स्ट। फैयाज भाई आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। हेलो, आ रही है अभी? हाँ हाँ। फैयाज भाई आप अनम्यूट करिए, आप म्यूट पर। हेलो, हाय यस, हेलो, हेलो। जी अभी बात करिए प्लीज। अब देखिए, मैं आपको बता रहा था एग्रीकल्चर के ताल्लुक से पे। अब इसकी जो
यूनिवर्सिटी से महाराष्ट्र में। सबसे पहले महाराष्ट्र काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एजुकेशन, इसका हेड ऑफिस पूना में पे। इसके बाद देखिए आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ राहुरी, डॉक्टर पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ अकोला, महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ परभणी, डॉक्टर बाबा साहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ दापोली। और ये जो एग्जाम होता है इसका, ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरी एजुकेशन इंडियन काउंसिल को कंडक्ट करती है पे। इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, स्वयं बेंगलोर, जेपी रोड, मुंबई। नेक्स्ट शायद भाई। नेक्स्ट स्लाइड से शहद भाई। अब इसी के बाद हम देखते हैं कि इसी से मिलता जुलता पे जो होम साइंस है, जो बीएससी इन होम साइंस पे, आप घर पे बहुत सारे मटेरियल हम घर पे बना सकते हैं यहाँ पे। और फिर जो इन्वायरमेंट साइंस है, बीएससी फिजिक्स, ये सब बड़े बड़े कोर्सेज यहाँ पे, ये डायरेक्ट 12वीं के बाद पे यहाँ पे बीएससी इन होम साइंस, होम में क्या क्या अपन कर सकते हैं यहाँ पे, बीएससी इन्वायरमेंट है, बीएससी इन फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बीएससी इन बैटनी जूलॉजी यहाँ पे। ये करने के बाद भी आप ग्रेजुएशन होते हैं और बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी अपीयर कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, ये हो गया पे। नेक्स्ट, अब किस तरह से आपको इंटर होना पे, यहाँ पे आपके सामने जो स्लाइड है, तो ऐसे स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि 10वीं के बाद डायरेक्ट उनको जॉब मिले, कुछ काम करना चाहते हैं यहाँ पे, मैं भी यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी दूंगा। सबसे पहले मैं आपको आईटीआई कोर्सेज के बारे में बताता हूँ। आईटीआई कोर्सेज की एक बड़ी लिस्ट है पे। मेरा एक स्टूडेंट था, मोहसिन नाम था उसका, 10 उसका परसेंट कुछ 52 आया। अपने घर का पहला था जो 10वीं की एसएससी किया। अब तो काम का बहुत शौक था पे, आगे पढ़ना भी नहीं था उसको, तो उसको सजेशन किया कि आप आईटी कोर्स के पे। आईटीआई में उसने जो ट्रेड ज्वाइन किया वो इलेक्ट्रिकल का था। 2 साल उसने कंप्लीट किया और 6 महीने उसकी इंटर्नशिप हुई। इंटर्नशिप होने के बाद उसको बहुत मशहूर कंपनी गोदरेज में जॉब मिला। वो अपने घर का पहला बच्चा था, 10वीं किया। जब वो जॉब पे आने लगा, उसको कंपनी की तरफ से जो सूट में आना था, ये करना था, वो गया तो उसको बहुत अच्छा लगा पे। और अपने घर का पहला गरीब बच्चा था वो था पे, यानी इतना गरीब था कि वो जब पढ़ता था वो रोड पे ताला चाबी बना के अपना काम करता था। अब उसका पूरा लिंग ऑफ स्टैंडर्ड चेंज हो गया पे। अब वो चाहता है कि जो स्टार्टिंग पेमेंट मुझसे पूछा था बच्चे से, बताया सर मेरे को जब मैं कंपनी में लगा तो 13,000 मेरे को पगार देते थे और मेरे को लैपटॉप था, ये सब फ्री मिला था। और जो मैं जाता था वहाँ पे, जब पिंग करके शूटिंग कर जाता था, उसको बहुत अच्छा लगता था। उसके पेरेंट्स की बहुत खुशी थी, मेरा बच्चा इतना, हालांकि बहुत बड़ा कोर्स नहीं था लेकिन उसके लिए बहुत बड़ा कोर्स था। तो और फिर उसके में इतना ऐसा है कि मैं पढ़ूंगा, और जो बच्चा यशवंत राव से बीए करने लगा। हो सकता है बच्चा आगे आके बहुत तरक्की करेगा पे। तो अगर आप आगे पढ़ना नहीं चाहते हैं और डायरेक्ट जॉब करना चाहते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट जो, ठीक है, आपका परसेंट से भी आपका परसेंट कम आया है, 50% है, 60% और आगे नहीं पढ़ना है, तो ये आईटी बहुत सारे ट्रेड्स है। 2-2.5 साल का कोर्स है, कुछ कोर्सेस 6 महीने के हैं। इसमें एक कोर्स ऐसा है, उसका नाम है एनसीवीटी। एनसीवीटी मैं इसका जिक्र, कोर्सेज तो ऐसे है गवर्नमेंट के कि जितने भी आईटी कॉलेजेस हैं, ये गवर्नमेंट जो आईटी कॉलेज है, वहाँ पे ये कोर्स फ्री में होता है। फ्री का मतलब कि कोर्स की फीस अगर 1800 रुपये है, तो उसमें जो है 1000 रुपये कोर्स फीस है और 800 रुपये एग्जाम फीस है। तो अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो फीस आपको वापस मिल जाएगी। यानी अगर 1800 फीस है तो 1000 रुपया आपको वापस मिलेगा। खाली जो कोर्स की फीस है वो देना पड़ेगा। और जिस बच्चे के पास सर्टिफिकेट आ गया, जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, हम लोग जो है पिछले दिनों भादोड़ गए तो वहाँ पे, यहाँ पे कोर्सेज चलता है और हर शहर में कोर्सेज होता है एनसीईटी का पे। ये कोर्स करना का जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट का है,
उसका टाई अप जो ऑस्ट्रेलिया से हुआ है। तो ये जो कोर्स करने के बाद सर्टिफिकेट मिलेगी एनसीवीटी की, तो वो बाहर जाना चाहे तो बाहर भी जा सकता है एनसीईटी कोर्स की जगह पे। तो जितने भी आईटी कोर्सेज है गवर्नमेंट आईटी कोर्स में ये सब सहूलत रहती है और बहुत सिंपल कोर्स है पे अपने आप को। और सपोज अगर आप पास हो जाते हैं तो आपको पैसा ऑफ मिलेगा। अगर आप इन केस फेल हो गए तो आपको पैसा वापस मिलेगा। कब मिलेगा? जब भी आप पास हो जाएंगे वो पैसा आपको वापस मिलेगा आपको। तो ये आईटी कोर्स है या एनसीईटी के कोर्सेज है भी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ यहाँ पे लिखा नहीं वहाँ पे कि बहुत से बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं इनके पर्सनल अच्छा है, वो पूरी डिटेल आपको दे दिया हूँ मैं कि एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस तो बहुत टॉप कोर्सेस है। अब जो बच्चे और आगे पढ़ना नहीं चाहते हैं, अपने पैर पे खड़े होना चाहते हैं, तो उनके लिए भी एक और कोर्स है। उन बच्चों के लिए जो आगे पढ़ने नहीं चाहते हैं, फॉरेन जॉब करना चाहते हैं, उसका नाम है MCVC। MCVC इसका जिक्र मैं यहाँ पे नहीं किया हूँ। इसका नाम है मिनिमम कॉम्पिटेंसी वोकेशनल कोर्सेज। ये भी गवर्नमेंट के हर कॉलेज में इसके तकरीबन 150 ट्रेड्स है इसके अंदर पे। इसमें से अकाउंटिंग है, बिल्डिंग मेंटेनेंस है, MLT है, CMLT है, बिल्डिंग मेंटेनेंस है, ये सब कोर्सेज यहाँ पे। और ये कोर्स करने के बाद अगर आपको जॉब मिलेगा तो ठीक है, और जॉब मिलता है भी यहाँ पे क्योंकि बहुत सारी कंपनी डायरेक्ट आती है यहाँ पे और अपना खुद का भी रोजगार शुरू कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पे जो एक स्किल डेवलपमेंट का कोर्स हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से। अगर आप लोग स्किल डेवलपमेंट कोर्स कंप्लीट करते हैं तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि ये स्किल डेवलपमेंट का सर्टिफिकेट आपके पास आ गया और बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको 10वीं पास या 12वीं पास की जरूरत नहीं पड़ा। मान लो आपको अकाउंटिंग कोर्स करने गए, आप अकाउंटिंग कोर्स कर लिए, आपको अपना खुद का बिजनेस डालने गए, उससे बहुत सारा फैशन डिजाइनिंग है, डाई एंड टूल मेकर है, या जो लेडीज जो मेकअप करते हैं पे फैशन का, तो अगर वो फैशन डिजाइनिंग करना है तो आपने कोर्स कर लिया, आपके पास सर्टिफिकेट आ गया, अब आप चाहे तो अपना खुद का बिजनेस कर सकते हैं। और बिजनेस करने के लिए 50,000 से लेके 5 लाख तक लोन भी मिलता है और इसके लिए कोई गारंटर की जरूरत नहीं, आपकी सर्टिफिकेट आपकी गारंटी है। स्किल डेवलपमेंट कोर्स की प्रधानमंत्री विकास स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया पे हो। हर शहर में एक कोर्सेज की डिमांड है और इसमें बहुत ज्यादा पूरा लोग ऐसा समझो आपको इलेक्ट्रिकल आपने किया पे इलेक्ट्रिकल कोर्स कर लिया, अगर आपको जॉब करना है तो ये लोग जॉब भी लगा के देंगे। और इनकी बहुत बड़ी फील्ड है पे, जितने भी कोर्स है इलेक्ट्रिकल का है, मैकेनिकल का है, रेडियो मैकेनिक है, टीवी मैकेनिक है, फैशन डिजाइनिंग है, तो ये जो जो कोर्स करते हैं एसी फ्रीज है, जितने कोर्स है सब के सब जो है स्किल डेवलपमेंट में आते हैं आपको। ये कोर्स का आपके फायदा अगर कुछ ज़्यादा नहीं, आपको 10वीं 12वीं है, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आपका जो 10वीं 12वीं का सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपका बैंक अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपका जो भी लेन देन होगा वो बैंक के जरिए होता है आपको। तो शहादत है, बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है ये कि ये कोर्स करने के बाद आपको 50,000 से लेकर 5 लाख रुपया बिजनेस के लिए, जैसा भी आप बिजनेस को बना देंगे कोटेशन, वैसे आपको लोन मिलेगा। और इस लोन के लिए आप देखते हैं कि जितनी बैंक है वो लोन के लिए बहुत सारे कागजात मांगती है, उसके बाद गारंटर चाहिए, गारंटर हमको आसानी से मिलता नहीं है। लेकिन ये स्किल डेवलपमेंट कोर्स करेंगे तो आपको कोई गारंटर की जरूरत नहीं, आपका गारंटी जो आप स्किल डेवलपमेंट का सर्टिफिकेट है। तो अब ये तो जहाँ पे IT कोर्स हो गया, MCVC हो गया, स्किल इंडिया हो गया, अब ये जो बड़े कोर्सेस है बैचलर डिग्री के पे, और ये सब के बारे में आप लोग बहुत अच्छे जानते हैं। पे देखिए जो आपकी स्क्रीन नजर आ रहा है BSc IT है। कंप्यूटर के तो डिमांड आप देख रहे हैं कितने बढ़ते जा रहे हैं। जो जरी टेक्नोलॉजी है, आप यहाँ मुझको बैठ के सुन रहे हैं, मैं कहाँ पे बैठा हूँ, आप कहाँ बैठे हैं, अलग अलग बैठे हैं लेकिन आप सब सुन रहे हैं। तो ये जो है कंप्यूटर का ही कमाल है पे, समझे। कंप्यूटर कॉलेज आज हम घर बैठे कोरोना के वायरस में बाहर नहीं निकल सक रहे, बाहर नहीं निकलते, लेकिन हम घर बैठ के ये पूरा सेमिनार अरेंज किया पे और सबको फायदा मिल रहा पे। तो ये कंप्यूटर फिर इसका डिमांड हमेशा बढ़ते रहे, कम नहीं होगा पे। मेरा एक दोस्त है, मेरा क्लासमेट था, वो कंप्यूटर इंजीनियर है, आप शिफ्ट हो गया कंपनी में और लाखों में खेल रहे हैं। कल रात में से बात ही आकिब करके यहाँ पे आज बाहर हुए कोर्स करे कंप्यूटर साइंस बन के, और बहुत सेटिस्फाई, बहुत
इसकी लाइफ एकदम सेटल हो गई यहाँ पे। उसके बाद इसके आगे जितनी फील्ड आएंगे यहाँ पे, जितना आगे बढ़ेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। नेक्स्ट, अब ये जो भी जितनी भी बातें आपको बताई गई यहाँ पे, कौन कौन से एग्जाम आपको देना है। देखिए, ये जो हमारे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अदारा है आईआईटी, पूरी दुनिया में जो टॉप के इंजीनियर है, बड़े फख्र की बात है कि वो भी इंडिया के हाथ में है। यहाँ पे आईआईटी में एडमिशन मिलना बड़ी फख्र की बात होती है पे। ऐसा लोग कहते हैं कि जो आईआईटी कर लिया उनके लिए यूपीएससी एमपीसी इजी हो जाता है पे। तो इसके बहुत सारे कॉलेज हैं पूरे हिंदुस्तान में। बॉम्बे भी इसका कॉलेज है, पवई में। यहाँ पे एडमिशन मिलना बड़े फख्र की बात है। और आईआईटी जो आईआईटी होते हैं वो पूरी दुनिया में बहुत फेमस है। आप भी देखो जितने भी टॉप के इंजीनियर है, बढ़िया किस्मत जो टॉप इंजीनियर होता है वो चल रहा है, मतलब क्यों, उसको पैसा ज्यादा मिलता है। बहरहाल आपको आईआईटी के लिए आईआईटी जेई है, जेई मेन है, एडवांस है, इसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके लिए ये एग्जाम तो बंद हो गया अभी। और कुछ एग्जाम ये जो भी मैं आपको बता रहा था, जो एग्रीकल्चर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, ये एग्जाम है। आर्किटेक्चर के लिए एनआईडी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग है, स्पेशल क्लास फॉर अप्रेंटिसशिप एग्जाम आपको। इसके अलावा जो मैं आपको भी जिक्र कर रहा था, नेक्स्ट शायद भाई, नेक्स्ट स्लाइड। देखिए, अभी मैं बताया था इससे पहले आपको जिक्र कर चुका हूँ कि डेमो बोला आपको नेक्स्ट टाइम इसके कॉलेज कहाँ कहाँ पे है। तो ये आपके सामने जो है डेंटल मैकेनिक एंड डेंटल हाइजीन जो बताया था कि जो उसने कोर्स किया था आज लाखों रुपये कमा रहा पे। तो उसने बॉम्बे से किया था, सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल से डेंटल मैकेनिक कोर्स किया था जो कोलम में है। उसका जो कॉलेज जो है सेंट जॉर्ज कॉलेज डेंटल कॉलेज हॉस्पिटल मुंबई। उसके बाद गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल अफजल जंग हैदराबाद। इसके बाद थर्ड वन पे है भारतीय विद्यापीठ पुणे। फिर गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बेंगलोर, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज अहमदाबाद, मद्रास डेंटल कॉलेज, डेंटल विंग मेडिकल कॉलेज त्रिवेंद्रम। ये जो है सब गवर्नमेंट कॉलेज है। आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे ये कोर्स कर सकते हैं। अगर आपको आगे नहीं पढ़ना है और इतना ही रहना पे तो आप ये कोर्सेज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, बताया था ये कोर्स के बारे में फिजियोथेरापी कॉलेज, जब अभी आपका जिक्र कर चुका हूँ मैं फिजियोथेरापी के बारे में। ये कुछ कॉलेज में ऐसा है फिजियोथेरापी का कि डायरेक्ट एडमिशन मिलता है, और कुछ कॉलेज में जो है इंट्रेंस एग्जाम के जरिए जाते हैं पे। ये कुछ टॉप कॉलेज की लिस्ट है आपके स्क्रीन सामने कि आप देखिए ये कोर्स करने के बाद भी आप डॉक्टर ही कहलाएंगे। और मैं अभी जो देख रहा हूँ मेरे शहर भिवंडी में इन लोगों की बहुत डिमांड है मेरे पास, क्योंकि उनको अलग अलग तरह से वर्जिश कराई जाती है, शौक दिया जाता है, और कुछ मशीनें होती हैं, मशीनों के जरिए उनको चेकअप किया जाता है। और कहीं सूजन आ गई है तो उसको वाइब्रेट दिया जाता है। तो इसके जो कॉलेजेस हैं आप देखते हैं, फिजियोथेरेपी कॉलेज, फिजियोथेरेपी स्कूल एंड सेंटर, जीएस मेडिकल कॉलेज परेल मुंबई में है। उसके बाद टोपी वाला मेडिकल कॉलेज नायर हॉस्पिटल में है। स्कूल ऑफ फिजियोथेरेपी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिकल रिहैबिलिटेशन मुंबई, लोकमान्य तिलक। इसके अलावा पद्मश्री डी वाई पाटिल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी फिजियोथेरेपी स्कूल एंड सेंटर नागपुर कॉलेज, रवि नायर हॉस्पिटल कॉलेज वर्धा। तो ये जो कुछ फेमस इंस्टीट्यूट है वहाँ से आप लोग कोर्स कर सकते हैं पे। इसके बाद बताया था मैं नेक्स्ट एक्यूपेशनल थेरेपी। इसके कॉलेज भी ये दोनों सेम कॉलेज है, लोकमान्य तिलक वहीं पे चलता है, फिजियोथेरेपी भी और एक्यूपेशनल थेरेपी भी। तो ये लोकमान्य तिलक म्युनिसिपल मेडिकल कॉलेज साइन मुंबई, फिजियोथेरेपी स्कूल एंड सेंटर सेट। इसके बाद जीएस मेडिकल कॉलेज परेल मुंबई, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई स्कूल ऑफ फिजियोथेरेपी परेल, फिजियोथेरेपी स्कूल एंड सेंटर नागपुर कॉलेज नागपुर। नेक्स्ट,
ये जो प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोडेंटिक यहाँ पे उसके यहाँ पे। ओके सैयद भाई, हेलो। तो ये कुछ कोर्सेस थे। इफ यू वांट, हेलो सैयद भाई, ओके सैयद भाई, आ रही आवाज? हाँ 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 हाँ, आ रही है, आ रही है। हाँ हाँ, ओके सैयद भाई, नाउ कंक्लूड करते हैं इसको यहाँ पे कि अगर आप कोई क्वेश्चन आंसर है तो उसको पूछ लेते हैं हम किसी से। Sure. I request Asma ma'am to kindly take over the Q&A session. Asma madam. Ji, Shehzad bhai. Very few questions have come out. So I have noted two main questions. So please explain more about rubber and food technology. What is BTech in food science? रबर टेक्नोलॉजी देखिए मैडम, इसका ना बहुत डिमांड है रबर टेक्नोलॉजी का। मेरे बताया अभी जिक्र किया था कि रबर टेक्नोलॉजी आप देख, जितने भी चीजें आप देख रहे हैं रबर से बनती है, वो ये ऐसे है कि आप एक कोर्स करते हैं, डिप्लोमा करते हैं, डिप्लोमा करते ही यहाँ पे हर कॉलेज में, बॉम्बे में जितने कॉलेज यहाँ पे इसका डिप्लोमा होता है यहाँ पे। अगर गवर्नमेंट का आप देखेंगे तो बांद्रा में गवर्नमेंट का कॉलेज यहाँ पे आपको एडमिशन मिला, समझो आपको जॉब मिले यहाँ पे रबर टेक्नोलॉजी का भी। रबर टेक्नोलॉजी के साथ साथ फूड टेक्नोलॉजी यहाँ पे। The next question for BSc Agriculture, 12th should be from science. Also, is mathematics necessary for this? हाँ साइंस, Also, is mathematics necessary for this? हाँ या मैथमेटिक्स, साइंस तो मैथमेटिक्स भी कर सकते हैं। और देखिए असल में कैसा है कि अभी जो गवर्नमेंट ने इसके लिए बहुत सारी फैसिलिटी दे दी है। आप देखेंगे कि जो हमारा इंडिया है एग्रीकल्चर कंट्री यहाँ पे, तो जो लोग ये कोर्स नहीं भी किए वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं यहाँ पे, लेकिन एक पढ़ने के बाद उसके अंदर जो चेंजेस आ जाते हैं यहाँ पे, फिर वो नई नई तरह की जो सॉइल्स है किस तरह करना चाहिए, उसको प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने पिछले 2 साल से, पहले ये सिलेबस में था नहीं यहाँ पे, लेकिन इसको गवर्नमेंट ने एक फील्ड बना दिए। पहले जो 5 जब 7 फील्ड बनी है, तो बाकायदा इसको इंक्लूड किया गया एग्रीकल्चर का पे, और उसको गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही है अपनी। तो 12 10 के कीजिए, जो मैं बताया कि जो www महाकरियर में तो जो वेबसाइट है, अगर आपको एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है तो आप एग्रीकल्चर लिख दीजिए। यहाँ पे एग्रीकल्चर के कॉलेजेस कहाँ कहाँ पे है, खाना डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पे है, महाराष्ट्र में कहाँ पे है, हिंदुस्तान में कहाँ पे है, उसकी पूरी डिटेल आएगी। उसके बाद उस कॉलेज की कितनी फीस है, कौन से कॉलेज प्राइवेट है, कौन सा गवर्नमेंट है, ये पूरी डिटेल यो महाकरियर मित्र मिल जाएगी आपको। Next question, can you elaborate on marine biology, that is course duration, top colleges and the future scope regarding this? Marine biology. हेलो सॉरी, आवाज नहीं आ रही। Can you elaborate on marine biology? Hello. Yes sir. हेलो, आवाज आ रही है? यस सर, आवाज आ रही है? हेलो। Sorry for the inconvenience, everyone. I think the speaker was disconnected. Fayaz sir, unmute करिए अपने आप को please. हेलो जी। अरे आवाज, हाँ जी. Now the next question, can you elaborate on marine biology, that is course duration, top colleges and the future scope regarding this? फयाज साहब, मरीन बायोलॉजी के बारे में पूछा जा रहा है। Can you elaborate about marine biology?
हेलो 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 जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है हमें। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ हाँ। हाँ, तो किसी ने सवाल पूछा है कि प्लीज़ देखिए इसमें असल में, इलेबोरेट मराइन बायोलॉजी, हेलो, कोर्स ड्यूरेशन और फ्यूचर मैरिन स्कोप इसके बायोलॉजी। बारे में। भैया साहब, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। बारिश भाई, Uh, we have to wait for 2 minutes. I just spoke to him. He is having some network issues. Just wait for 2 to 3 minutes. This should be sorted. Meanwhile, we request everyone, आपके जो भी questions है आप question answer session में post कर सकते हैं. We'll try to cover as much as possible. Jazakallah.
Shehzad bhai, will wait for another 5 minutes. If it is not happening, then we have to close it. Sorry for the inconvenience, everyone. Baris bhai? Shehzad bhai, he is not able to connect again. There's some issue with the connectivity at his end. So I guess we have to conclude now. Okay. Do you want me to take this last question, जो marine biology का था? If you can answer, then nothing like it. So sorry for everyone for this technical glitch. Our speaker is not able to connect again. However, this will take this last question, which was already raised about marine biology. कि मरीन बायोलॉजी होता क्या है, कि ये आज हम लोगों को पता है कि दुनिया के अंदर समंदर जो है, पानी जो है ये ज़्यादा है और ज़मीन जो है वो कम है। तो इसके अंदर स्कोप मरीन बायोलॉजी के अंदर काफ़ी सारा है कि मरीन बायोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल ओशनोग्राफी, मतलब ओशंस के बारे में उसके अंदर पढ़ाया जाता है, जिसके अंदर जो है केमिकल्स है, फिजिकल एंड जियोलॉजिकल है, ओशनोग्राफी। इसको अंडरस्टैंड कराया जाता है, मरीन ऑर्गेनिजम्स है, इसके बारे में पढ़ाया जाता है। सबसे मज़ेदार चीज़ इसके अंदर ये है कि मरीन बायोलॉजिस्ट स्टडी थिंग्स दैट लिव इन ओशन, कि ओशन के अंदर जो भी जानदार चीज़ मौजूद है उसके बारे में जो है मरीन बायोलॉजी के अंदर पढ़ाया जाता है। मरीन बायोलॉजी इंक्लूड्स एवरीथिंग फ्रॉम स्मॉल organisms such as plankton right through the very large, कि एक छोटी से छोटी चीज़ जो ज़मीन जो समंदर के अंदर मौजूद है उससे लेकर के बड़ी से बड़ी, जैसे कि व्हेल फिश है, उसके बारे में भी जो है इसके अंदर पढ़ाया जाता है। तो इसके लिए जो इसके अंदर सबसे ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्कोप इस चीज़ के अंदर ये है कि आप अगर मरीन बायोलॉजी को अपना करियर बनाना चाहते हो तो इस बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो इसको प्रोवाइड करते हैं, ये सब्जेक्ट को जो है प्रोवाइड करते हैं, इसके करियर को प्रोवाइड करते हैं। तो आप वैसे कॉलेजेस के अंदर एज अ लेक्चरर, एज अ टीचर बनकर जा सकते हो। कि बैचलर ऑफ, इसके अंदर जो कोर्सेज है, एक है बैचलर ऑफ साइंस इन मरीन बायोलॉजी, कि आप 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट करने के बाद में 3 साल का कोर्स होता है, आप वो कोर्स कर सकते हो। मास्टर्स ऑफ साइंस इन मरीन बायोलॉजी होता है, ये जो है बैचलर डिग्री कंप्लीट करने के बाद में आप 2 साल का कोर्स होता है, वो कर सकते हो। इसके अंदर एक सर्टिफिकेशन कोर्स होता है, सर्टिफिकेट कोर्स इन मरीन बायोलॉजी। इसके लिए भी लेकिन ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। आप किसी भी लेवल के ग्रेजुएट हो तो आप ये कोर्स 6 मंथ का होता है, आप ये कोर्स कर सकते हो। कि मास्टर्स इन साइंस, मास्टर्स इन फिलोसफी इन मरीन बायोलॉजी, इसके लिए जो है ये 2 साल का कोर्स होता है आफ्टर ग्रेजुएशन। और एक होता है डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, पीएचडी इन मरीन बायोलॉजी। तो आप मास्टर्स करने के बाद में ये 3 साल का कोर्स होता है जो कि खास मरीन बायोलॉजी के ऊपर होता है। तो बहुत सारे ऐसे इसके अंदर भी, मरीन बायोलॉजी के अंदर भी अगर आप एक्सप्लोर करना चाहें तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आप अगर इसको अपना करियर बनाना चाहो तो इसके अंदर स्कोप ऐसा ना सोचे कि लिमिटेड स्कोप है, बल्कि काफ़ी सारा स्कोप है कि हम जो है इसको अपने एतबार से जो है एक्सप्लोर करें। अगर आप लोगों को इसके जानकारी के लिए अगर कोई भी जानकारी चाहिए होगी तो आप जो है हमारे वेबसाइट के ऊपर जो है करियर काउंसलिंग सेल है, उनमें से जो है किसी भी एक्सपर्ट के साथ में बात करके इसको और एक्सप्लोर कर सकते हो। और हमारी वेबसाइट पे जाइए www.amponnline
ampindia.org/career_council_cell। यहाँ पर आप जाओगे तो आपको लिस्ट ऑफ एक्सपर्ट्स मिलेंगे, जहाँ पर से आप जो है जो भी मरीन बायोलॉजी के लाइन का है या जब पीएचडी जिन्होंने साइंस में की होगी उनसे जो है राब्ता कायम करें, उनसे बात करें और जो है अपने सारे क्वेरीज को वहाँ पर आप रिजॉल्व कर सकते हैं। और आज जो सेशन लिया गया उसके अंदर जो भी टेक्निकल ग्लिचेस थी उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। विल हैव टू एंड दिस सेशन फॉर नाउ, and any questions which has been pending, we'll try to get back to speaker and see if we can get the answers to those questions, and we'll send it to you via email. Thank you so much everyone for attending this session. We'll end the session now with a dua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ya awwal al-awwalin, ya akhir al-akhirin, ya dhal quwwati al-mateen, ya rahim al-masakin, ya arhamar rahimin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم انت السلام ومنك السلام، تبارك ربنا وتعالى بهذا الجلال والاكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم يسر لنا أمورنا كلها مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. So thank you everyone for attending this session. We'll have our next session on Monday. We do not have any session on Sundays. So on Monday we have our session on career in law and judiciary, which will be taken by Ms. Afreen Khan. So we request you all to please join at 3 p.m. Thank you so much. Assalamu alaikum.